How would you define this? मतलब हमारे जो typical physics है और जो quantum physics है, इसमें क्या differentiation है और So physics is the study of how things work. Quantum physics is the study of how things work at a subatomic level. जहां आपको लगता है कि आप साइंस की नहीं शायद मैजिक की बात कर रहे हो. But guess what? That is the world of quantum physics. so how does quantum physics works in leadership और इसके impact क्या है? कि क्या लीडरशिप आर्ट है या साइंस है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही है कि इट्स अ साइंस. इफ वी लर्न इट we can become a good leader. ये जो आपने ग्रिड दी अपनी किताब के अंदर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के हवाले से, वैल्यू अलाइनमेंट के हवाले से, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? We call it the values competence grid. Any organization, they need a certain set of competencies in a person to decide if they want to work with them or not. Quantum physics के अंदर दो subatomic particles आपस में उलझ जाते हैं, entangled हो जाते हैं. उसके बाद उन दो particles को एक दूसरे से जितना दूर आप ले जाएं, they can still communicate with each other. Now this is not the magic. The magic comes later, but the magic is that they communicate instantaneously. We live in a society जहाँ पे हमारे यहाँ majority लोग अपने आप को upgrade नहीं कर रहे. Some people probably are very short-sighted. They do not understand that this is going to pay long term. That this is the natural process. Whenever you are feeling a little uncomfortable, that is a sign that you are growing. Thank you so much, Sai Bhai, for showing up in this podcast. I've been following your work on LinkedIn and the kind of journey you've had. You've been a very vivid learner, I would say that. The kind of been investing on yourself. जिस तरह से अपनी self development पे काम कर रहे होते हैं. Took a leap and go to abroad for a degree. That's very inspiring. So in today's podcast, I would really like to learn that कि आपकी क्या journey रही, क्या आपके feedbacks हैं towards the training industry in the quantum physics को भी dissect करेंगे. मेरा पहला सवाल बड़ा usual सवाल होता है कि आपकी training and development की journey है, जो आपकी professional journey, वो कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पर खड़ी हुई है? Okay. So first of all, thank you very much for inviting. It's a pleasure being here with you. तो समद मेरी जर्नी जो है, आई थिंक मेरी लर्निंग जर्नी जो ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी के साथ है, इट स्टार्टेड when I left Mobilink in 2009. Okay. So at that time, before that, I had done my bachelor's in business administration. I worked with Marriott for a year and a half, and I worked with Mobilink for good 4 years. And then I sort of transitioned into the training industry. So this was in 2010 जब मैंने अपना मास्टर्स भी स्टार्ट किया और उसके साथ साथ I started working with Navitas. So Navitas was a training and consulting firm at that time, one of the biggest. तो उनके साथ मेरी जर्नी जो है ट्रेनिंग की स्टार्ट हुई back in 2010. Nice, जबरदस्त. And then moving forward, Navitas के बाद फिर आपकी क्या road maps रहे? Okay, so I worked with Navitas for a couple of years. Navitas की एक sister concern है Stimulus. That is where I started learning thing formally from my gurus. तो वहाँ पे फरहाद थे, वहाँ पे शीरीन नकवी थी, वहाँ पे कामरान रिजवी थे, लेट नदीम चौहान वहाँ पे थे. तो I had the privilege of learning from them. Farhad has been my guru. My mentor. So उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला. I worked with them. Then I also got the opportunity to work with Learning Minds. Suhail Zindani के साथ, again a great person to learn from. Or then in 2012, I started my own training firm with the name of TPE Consultants. Nice. And since then, I've been doing my own work. We work with clients in Pakistan, East Africa, Central Asia. And we try to add whatever little value that we can. One question कि you've been working with Mobilink, then Marriott, then Navitas के साथ काम किया. ये कब ख्याल आया और ये बड़ा एक मुश्किल थॉट होता है कि ना यार अब आप एक जॉब को स्किप करके आई हैव अ सर्टेन कंफर्ट जोन को छोड़कर अब मुझे अपने इदारे को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम मैं समझता हूँ बिल्कुल भी आसान नहीं है, चाहे आप जिस लेवल पे क्यों ना पहुँच जाए, बिकॉज यू दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिकॉज पाकिस्तान में लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है निस्बतन वो दूसरे कंट्रीज़ के बहुत ही कम दिखाई देती है. सो हाउ टफ इट वॉज एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट?
Okay, so I'll be very candid here, Samad, और मैं आपको वो जवाब दूंगा जो बिल्कुल हकीकत है. So when I started my career, my first job was with Marriott, and I'll be very honest with you. At that time, if someone would ask me why did I join Marriott, I would say I do not know, because I wanted a job. ऐसा ही है. Period. So that was my first job. At that time, मैंने कहा कि यार जो मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, start कर लो. Then when I joined Mobilink, again, I had this clarity in my mind that this is not going to be my career, because I was working in customer services. I knew that customer services is not the industry for me. It's not a career. It's a Exactly. job. It was paying really well at that time, but I had this clarity that this is transitional. ये एक दिन ऐसा होगा कि मुझे यहाँ से स्विच करना पड़ेगा. Number one. Number two, I knew that I had to pursue my education. I need to continue my education. So bachelor's करने के बाद I worked in the industry for good 5-6 years, and then I thought it is the right time to again start the relearning process, the unlearning and the relearning process. So since then, every 5 to 6 years, I sort of go into the transition where I start learning the process. तो I think इब्तदा उसकी इसी तरीके से हुई कि जब मैं मोबिलिंक में काम कर रहा था, I realized कि यार काम तो हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, but this is not a career. तो उस करियर के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन को. और उसी दौरान आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दीज ट्रेनिंग्स, एंड आई थिंक ड्यूरिंग वन ऑफ दोज ट्रेनिंग्स I realized that this is probably something that I'm interested in doing. And that's how I transitioned into training. और जो आपने कहा कि वो कंफर्ट जोन एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन था कि वो मंथली तनख्वाह जो आती है ऐसे ही है. उसको छोड़ना is not easy. So when let me give you a little perspective. When I was working in Mobilink, I was making really good money. और जब मैंने उसको छोड़ के अपना MBA स्टार्ट किया और उसके साथ दूसरा ट्रेनिंग वाला काम किया, तो probably my earning went down at least 60 to 70% मेरी नीचे आ गई. ऐसे ही है. But I knew that this is how I want to start. This is the first step that I need to take if I want to make a career and to do something which I am interested in and which is my calling. And that's how I decided कि यार इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ये जो शुरू के जो फाइनेंशियल जो हर्डल्स होंगे उनको बर्दाश्त करना है, but eventually it is going to pay off. I think your journey reminds me something from Les Brown, that if you make easy decisions in your life, Yeah, your life will be easy today, you know. exactly. But later it becomes hard, you know. Exactly. But अगर आज hard फैसले लिए, आज मुश्किल फैसले लिए, तो जिंदगी आज तो मुश्किल है लेकिन कल आसान. मतलब I would say that कि 100% income से आप 30% पे चले Yeah. जाओ, तो I know it's a big shift, you know. Yeah. आपकी certain financial investment होती है, आप एक certain जिम्मेदारी होती है, but if you know that the road map is clear कि यार मुझे वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए मुझे sacrifices देने पड़ेंगे. Brilliant. A very unique thing which I note about you as a trainer, and I've seen and I've observed that you took a transition after some time and you went to abroad and you did another degree जहाँ पे आप करियर के अपने पिनिकल पे हो, तो आप बैक टू बैक ट्रेनिंग्स करा रहे हो. तो गैप लेना कभी कभार आपको ना इंडस्ट्री से आउटडेट भी कर देता है. गैप लेना, यू नो, या आई हैव गॉट सर्टेन क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स अब दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो एक कनेक्टिविटी रहती है. इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि यार, यू नो, कि मुझे जाना है, मुझे, you know, I have to do another master's, which I've already done, but you said I'll do another one. Meanwhile, that the kind of work which you had in the past, the experience, the mentors you have been, मैंने देखा हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ डिग्री वाले थॉट पे नहीं कर रहे होता है. सही, मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, यू नो, हैविंग अ मास्टर्स डिग्री, वो नहीं है. सर्टिफिकेशंस वाली चीज़ मुझे मेंटोर्स में दिखाई देती है. सो आई डोंट नेम एनी मेंटोर, सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट. बट ये मोटिवेशन कहाँ से है कि यार मुझे ये करना है, या इसके पीछे भी कोई मेंटोर थे जिन्होंने गाइड किया, और इट्स अ सेल्फ थिंग? हाउ डज इट वर्क? Okay, so when I was doing my master's from Pakistan, so I did my MBA in HR. I wanted to do
my master's in training and development, but unfortunately training and development में उस वक्त भी कोई masters available नहीं था, और if I'm not wrong आज भी कोई available नहीं है. So we studied 30 courses. Out of those 30 courses there was only one course of learning and development. ऐसा ही है. So my pain point was that I was studying finance, I was studying marketing, I was studying other courses as well. But I thought कि यार why I want to learn training and development, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस वक्त. खैर उस वक्त जो मिल रहा था वो हमने ले लिया, MBA कर लिया HR में. And then I thought कि यार I need to learn this. If I want to grow, if I want to excel, the differentiation is going to come from my skill set. So that was the reason why I did my second master's in adult learning and development from Ireland, from University of Galway. It's among the top 1% universities worldwide. और I think उसके पीछे reason यही था कि यार जो चीज़ जो आपका passion है, क्योंकि by that time I had realized कि training is my passion. I'm passionate about it, and I think I could add value to people's life through this. And then I thought कि यार it is critical that I upgrade myself continuously. तो मेरी कोशिश है कि हर पाँच साल का एक होता है कि हर 5 साल में उसको रीस्किल करने की ज़रूरत है. आई डू अंडरस्टैंड कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा जो करते भी हैं. कंटिन्यूस लर्निंग मुझे लगता है कि इज़ क्रिटिकल फॉर आवर ग्रोथ, और ख़ास तौर पे हमारे लिए, बिकॉज when we are interacting with our audience, when we are training a session on something, we need to live, or at least try to live, the values that we are trying to instill in others. तो अगर हम किसी और को कहते हैं कि किताब पढ़ो, तो I think हमें खुद पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है. तो I think that was the reason why I did my second masters. और उसी दौरान जब मैं second masters कर रहा था, उसके बाद I also got the opportunity to do a leadership and strategy course from Cambridge. That was again, Cambridge का नाम है तो वो, I'll be very honest with you, I thought यार let's grab this opportunity. तो I think वो मेरा एक पैटर्न रहा है कि continuous learning के लिए continuous upgradation भी ज़रूरी है. ऐसे ही है. After the masters, you wrote a book on quantum physics, which is a fantastic one. मैंने खुद एक session आपका एक attend किया, एक awareness session that I remember at KSBL. It was very fascinating. Sometimes I think मैंने पहली बार सुना था इस concept को, मैंने कहा यार ये काफ़ी interesting लग रहा है, इस पे इंशाल्लाह कोई detail conversation करेंगे. उसके बाद कुछ videos भी follow up करी आपकी जो आपने बनाई, which we already had a discussion that. How would you define this? मतलब हमारे जो typical physics है और जो क्वांटम फिजिक्स है, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, और बहुत से लोगों को फिजिक्स समझ नहीं आती, हाउ इट्स रिलेटेबल टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट, प्लीज. ठीक है. सो सबसे पहले तो देखते हैं कि फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्या है. वो बहुत आसान जबान में हम इसको रखते हैं. सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. ये माइक कैसे काम करता है, ये कैमरा कैसे काम करता है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो काम कैसे कर रही है, दैट इज फिजिक्स. सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. Quantum physics is the study of how things work at a subatomic level. तो फॉर एग्जाम्पल हम में से वो लोग जिन्होंने फिजिक्स कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो हमने पढ़ा था कि जी एक एटम होता है, एटम, दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी हुई है. तो जब तक हम एटॉमिक लेवल तक की गुफ्तगू कर रहे हैं तब तक हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम एटम के भी अंदर चले जाते हैं तो हम क्वांटम पे आ गए, क्वांटम पे आ जाते हैं. सो द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस एट द क्वांटम लेवल इज क्वांटम फिजिक्स. सो मैं इसकी एक आसान एग्जांपल जो देता हूँ लोगों को, जो बड़ी हमारे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी समझ आती है, कि फिजिक्स जाहिर है, क्वांटम फिजिक्स बातिन है. वाह. सो क्वांटम फिजिक्स जो है वो बात करता है सब एटॉमिक लेवल पे दुनिया कैसे काम करती है. और जनरली हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स के लॉज कांस्टेंट हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, वो समझ में आते हैं हमें. हमें पता है कि ज़मीन किस रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रही है, लाइट की रफ्तार कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉर एग्जांपल न्यूटन ने बताई थी, आइंस्टाइन ने बताई थी, जो हम समझते हैं. लेकिन जब हम मैजिकली क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया में आते हैं तो फिजिक्स के लॉस चेंज हो जाते हैं. और इस पे आगे हम गालिबन बात भी करेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां आपको लगता है कि आप साइंस की नहीं शायद मैजिक की बात कर रहे हो. But guess what? That is the world of quantum physics. अगर हम क्वांटम फिजिक्स को लीडरशिप के साथ रिलेट करने की कोशिश करें कि
we do a lot of leadership training as well, you know. So how does quantum physics works in leadership, और इसके impact क्या है? ओके सो देखें, मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटम फिजिक्स और ये हमारी किताब से कनेक्टेड भी है कि लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड मैंने क्यों लिखी। और आपके सवाल का जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि एक हम सवाल अक्सर सुनते हैं कि यार आर लीडर्स बॉर्न और आर लीडर्स मेड, ये एक बड़ी गुफ्तगू होती है कि जी क्या कोई शख्स पैदाइशी तौर पे लीडर होता है या फिर वो लीडरशिप सीख सकता है। तो ये सवाल बहुत सारे हमारे जहन में भी आते हैं। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस कोर्स एट कैम्ब्रिज ऑन लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी, तो वहाँ मेरे जहन में भी ये सवाल आया कि यार इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि क्या लीडरशिप आर्ट है या साइंस है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही है कि इट्स अ साइंस, इफ वी लर्न इट वी कैन बिकम अ गुड लीडर। इट्स नॉट कि यार मैं पैदाइशी तौर पे मेरे अंदर वो खुसूसियात है तो मैं अच्छा लीडर हूँ, और पैदाइशी तौर पे अगर मेरे अंदर खुसूसियात नहीं है तो मैं लीडर नहीं हूँ। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड लिखी, जिसमें हम बता रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लीडरशिप पे अप्लाई हो सकते हैं। अब आप सोचें, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस क्वांटम फिजिक्स, अगर उसकी कोई चीजें आप अप्लाई कर सकते हो लीडरशिप में, देन this is probably a sign that leadership is science and not arts. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लीडर्स सीख सकते हैं क्वांटम फिजिक्स से, और हमने अपनी किताब के अंदर उन चीजों का तस्करा भी किया है। फॉर एग्जांपल एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, आगे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या है। फिर एक होता है हमारा क्वांटम सुपरपोजिशन। ये वो कॉन्सेप्ट्स क्वांटम फिजिक्स के हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी ऐसी विजडम मौजूद है जो लीडर्स मुझे लगता है कि सीख सकते हैं और उससे अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। Very interesting conversation going on. I'm loving this fact of this quantum physics and I'm very excited to go beyond. ये जो का आपने ग्रिड दी अपनी किताब के अंदर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के हवाले से, वैल्यू अलाइनमेंट के हवाले से, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? ओके सो समद, ये जो है वी कॉल इट द वैल्यूज कॉम्पिटेंस ग्रिड, और इसको बड़े आसान ज़बान में अगर हम समझा सकें वो ये है कि whenever anyone goes to an organization to work with an organization for example, तो वो क्या देखते हैं आपके अंदर? वो देखते हैं कि यार ये बंदा जिसको हम हायर करने लगे हैं फॉर एग्जांपल, इसके अंदर कॉम्पिटेंस, काबिलियत है या नहीं काम करने की। ऐसे एनी इंडस्ट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन, they need a certain set of competencies in a person to decide if they want to work with them or not. What we are proposing in this values competence grid is that you don't just look at the competence alone. You also look if the person is aligned with your organizational values. Very nice. So organizational values, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है, जिस तरह कि अगर आपकी values उस इदारे की values के साथ aligned नहीं होंगी, someone is going to suffer. Either the organization is going to suffer or the person is going to suffer. So what we have proposed in the book is कि यार आप competence के साथ values की alignment भी देखो, और अगर वो align नहीं होगी तो we have proposed कि 4 उसके possible outcomes हो सकते हैं. We call it the chaos, confusion, entanglement और superposition. So let me put it, मैं simple एक आपको उस grid में से एक element बताता हूँ, which is the chaos. जब एक इंडिविजुअल के अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है और उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज इदारे की वैल्यूज के साथ अलाइंड भी नहीं है, तो फिर यू आर इन केओस, क्योंकि यानी बंदे को ना काम आता है ना बंदे की वैल्यूज इदारे के साथ अलाइंड है। फॉर एग्जांपल आप और मैं एक साथ काम करना चाह रहे हैं, यू हैव योर ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट साहिब टू वर्क विथ यू, you have hired Sahib, but guess what? Sahib doesn't know how to work. Number one, he doesn't know the thing that you have hired him for. On top of that, his values are also not aligned with the organizational values. You believe in, for example, integrity. He is the person who does not have any integrity. आपकी organizational value है respect. साहिब disrespectful है. एक तो उसको काम नहीं आता है, ऊपर से वो disrespectful है. इसका नतीजा निकलता है chaos की सूरत हाल में. So this is how we have tried to explain these 4 grids. और हमने पूरा जो किताब के अंदर प्रपोज किया है कि कैसे आप अपने इदारे के अंदर लोगों को ला सकते हो जिनको आप chaos से
जो हमारी सुपर पोजिशन, जो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन है, वहां पे आप ले जा सकते You हो. also mentioned entanglement, something like that. I जी, really want to जी. understand that part as well. ओके, सो क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है एक क्वांटम फिजिक्स का बहुत जादुई एक कॉन्सेप्ट है. तो क्वांटम इंटेग्रलमेंट को अगर मैं आसान अल्फाजों में जी, समझूं तो ये क्या जी, है? मैं वो आपको समझा देता हूँ. सो पुराने जमाने में जब हम हैंड्स फ्री तार वाला यूज करते थे, तो कभी अगर इत्तेफाक हुआ, वो आपको जेब में अगर हम डालते हैं और फिर जेब से निकालते हैं, तो क्या हो जाता है? वो उलझ जाती है आपस में, तार इंटेंगल्ड हो जाती है. सो एंटेंगलमेंट का उर्दू तर्जुमा आसान जबान में है उलझना. अब क्वांटम फिजिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं. बड़ी मजेदार एग्जांपल है. क्वांटम फिजिक्स के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में उलझ जाते हैं, इंटेंगल्ड हो जाते हैं. जब एक दफा वो आपस में इंटेंगल्ड हो गए, उलझ गए, उसके बाद उन दो पार्टिकल्स को एक दूसरे से जितना दूर आप ले जाएं, they can still communicate with each other. Very nice. Now, this is not the magic. The magic comes later. Let me put it this way. एक सवाल. कायनात में, दुनिया में सबसे तेज स्पीड किस चीज की है? रोशनी की. Nothing can travel faster than the speed of light. This is a universal constant. कोई भी चीज कायनात में रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं कर सकती है, और रोशनी की रफ्तार है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली. अभी मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि हम कॉन्सेप्ट को आसान जबान में समझ सकें, एंटेंगलमेंट को. सूरज हमसे, जमीन से जितना दूर है, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं अप्रोक्सीमेटली. यानी इट मींस कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन, कोई भी चीज सूरज से जमीन तक 8 मिनट से पहले पहुंचना नामुमकिन है. बट गेस व्हाट, ये जो 2 एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं, अगर आप इनको एक दूसरे से अलग कर दें, एक को ले जाएं आप सूरज पे और एक को रख दें आप जमीन पे, दे कैन स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर. बट द मैजिक इज दैट दे कम्युनिकेट इंस्टेंटेनियसली. 8 मिनट नहीं लगेंगे. वो जो एक एंटेंगल्ड पार्टिकल जो सूरज में है और दूसरा जमीन पे, वो आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो गुफ्तगू कर सकते हैं सूरज की लाइट की स्पीड से भी तेजी से. नाउ दिस सीम्स नॉट प्रैक्टिकल. दिस सीम्स लाइक इट इज ब्रेकिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स. और ये वो चीज है जिसने चचा एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बड़ा परेशान किया था. और चचा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फेमसली ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहा था, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. साइंसदानों को आज नहीं पता है कि ये क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतनी तेजी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी जो नोबेल प्राइज फिजिक्स का 2-3 साल पहले जिन फिजिसिस्ट को मिला है, उन्होंने क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स पे ही रिसर्च किया था, जिसकी बिना पे उनको वो नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम एंटेंगलमेंट, today it is a fact, it is a science, it's not just a theory. It seems like magic. We do not know how this happens, but we know that this happens. I've seen a very continuous learning attitude in you. मतलब मैंने खुद नोट किया कि आपका एक attitude towards learning काफी continuous है. You keep like learning new things. That's how the quantum physics works. That's how you wrote a book. That's how you went to abroad and do a degree. We live in a society जहाँ पे हमारे यहाँ मेजोरिटी लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे. अच्छा, मैंने ये बात खुद अंडरस्टैंड की थ्रू जिम को, दैट माइंड्स लाइक नॉवेल्टी. जहन को ना नई थॉट्स पसंद है, अगर आप उसे नई थॉट्स नहीं दोगे तो इट्स गेट डर्टी, आपका माइंड रस्टी हो जाता है. आपने क्या पैटर्न नोट किया इन ट्रेनिंग एंड डेवलप, इतने सारे लोगों को कोच और ट्रेन करने के बाद, कि लोग क्यों अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, या क्यों लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, जबकि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपका पर्सोना, आपका ब्रांड इमेज, हर चीज़ इन्हांस होता है. But still people are investing in XYZ things and they're not investing in themselves. Why? What did you learn?
Okay. So Samad, I think इसके पीछे multiple reasons हो सकती हैं. Maybe we would not be able to generalize, but maybe I can share what I believe are some Yeah, of the reasons why people do not do it. So one reason could be that they do not have the kind of resources to invest in them. So when I say resources, I'm talking about money as well as time. Some people are so busy in their lives that they do not have the time, for example. तो for example आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, डिग्री करने के लिए बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, किताब पढ़ने के लिए तो पैसे होंगे. तो probably some people do not have that time. Some people do not have the resources. ऐसे. Some people probably are very short-sighted. They do not understand कि this is going to pay long term. So जब जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, it is not going to pay you off immediately. And probably we are living in a society जहाँ पे हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए. Very तो मैं nice. कहता हूँ कि यार ठीक है समझ, मैं ये कोर्स करने तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए 10 लाख लगा लूंगा, लेकिन ये जो 10 लाख मैंने लगाए हैं ना, ये मुझे 3 महीने में ये 10 लाख पूरे करने हैं. That doesn't happen. प्रॉबेबली उस वजह से भी लोग डर जाते हैं कि यार ये मैं इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे करूंगा तो इसका रिटर्न मुझे कब तक मिलेगा. आई थिंक what we need to make ourselves learn, and I'm specifically talking about us, the training fraternity, people in the training fraternity, is that if someone is not doing it, they should broaden their horizon. They should think about the long term, because the only way to survive in the future is when we invest our energies in enlightening our intellectual capabilities. Until and unless we invest in ourselves, we will not be able to survive in the future. तो I think ये कुछ वजूहात हैं जिसके बिना पे गालिबन लोग डरते हैं उस इन्वेस्टमेंट से, या उनको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है उनको इमीडिएट रिटर्न्स नहीं दे सकेगी. या एक और रीज़न जो हो सकता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार हमें ज़रूरत नहीं है. आई एम डूइंग रियली गुड. So for example, if I say I am a trainer, I'm getting the kind of business, I have all the dates, client dates, I'm talking about client dates. So why do I need to upskill? मैं क्यों अपनी अभी जो इतना अच्छा मेरे पास बिजनेस आ रहा है इसको छोड़ के मैं 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जाऊं, ये 3 महीने का बिजनेस 6 महीने का बिजनेस छोड़ दूं, पैसे लगाऊं, मुझे उसकी क्या जरूरत है जब उसके बगैर मेरा काम चल रहा है. तो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस which is stopping some of the people from continuously learning. Very important one. On the other end, हमारी एक और बहुत बड़ा मसला है that a lot of people had like this procrastination issue. I think this is a very common thing which you have seen, I have seen, and we all go through this thing. If I would understand your internal process that, you know, for example, at this age, you went all the way towards abroad and do a degree. You went all the way to quit this training industry and went towards writing a book. Usually 1% लोग ही हैं जो मैं समझ पाया जो ये कर पा रहे होते हैं. Even I love this Robin Sharma technique that entire majority के 5% लोगों में अगर आना चाहते हो तो वो करो जो 5% लोग करते हैं. What was that thing, that how you analyze that and how you overcome this procrastination, avoid this comfort zone? मतलब what is your process? I understand that we don't want to generalize people. हर किसी का अपना एक process होता है, हर किसी के अपने patterns होते हैं, but साहिब का process क्या था? वो क्या motivation थी कि साहिब को डर लग रहा था कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ यार, ये या clarity थी नहीं यार this will work? Okay, so very good question, Samad, and I'll be very honest with you here. ये गलत होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ. मैं बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. आई एम अ ह्यूमन. ये गलत होगा कहना कि यार आई एम ऑलवेज गंग हो अबाउट लर्निंग, कमिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, और मुझे तो कोई डर नहीं लगता. नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी थी. मैं अगर अपने मास्टर्स की बात करूँ तो माई वाइफ हैड अ ग्रेट रोल इन पुशिंग मी फॉर दिस ग्रोथ. तो शायद उससे पहले मेरा भी ये था गालिबन जहन में कि यार ठीक है मास्टर्स कर लिया है मैंने, अब बाहर जाएंगे पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर दोबारा से मैं 10 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ के बाहर जाऊंगा, ये पैसा आ रहा है इसको छोड़ के जाऊंगा, बाहर जाके दोबारा स्टूडेंट बनना, इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो आई हैड ऑल दोज फियर्स माई सेल्फ
It would be wrong to say कि वो fears नहीं थे. मेरे भी वो fears थे. But I think my better half had a role. She pushed me in a very positive way कि जी continuous learning is important. और फिर उसके बाद again आपको उस तकलीफ को, उस परेशानी को बर्दाश्त करना होता है. यार एक सिंपल सी एग्जांपल आप देखना, when we go to gym, तो जब हम लोग जिम नहीं जाते हैं, जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जब वो पहले दिन जिम जाके वर्जिश करते हैं तो क्या होता है, पूरे जिस्म में आपके दर्द होता है. And that is the point when you have the choice. Either you leave the gym or you bear that pain for a week or so, and then everything becomes easy after a week, 10 days. जिन लोगों ने जिम किया है उनको ये बात पता होती है. तो the same goes for me as well. मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से निकलने में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी परेशानी होती है. मैं भी जब नई चीज़ लर्न करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है. बट आई हैव स्टार्टेड टू लुक इट इन अ वे दैट दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. व्हेनेवर यू आर फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल, दैट इज अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग. जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जब आप परेशान होते हो, जब आप कहते हो कि यार मैं दोबारा अभी पढ़ने जाऊं, यानी दोबारा किताबें खोलनी पड़ेगी, दोबारा क्लासेस में जाना पड़ेगा. जब आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, बढ़ रही है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, आई थिंक दैट इज अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग. तो मैं कोशिश करता हूँ, आई वुड नॉट से आई ऑलवेज डू इट, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यूसली अपने आप को पुश करूँ. कभी कभार वो पुश काम करता है, कभी कभार वो पुश काम नहीं करता है. मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि आई नीड टू रीड बुक्स. पढ़ता हूँ, फिर छूट जाती है आदत, लेकिन फिर दोबारा से खुद को पुश करता हूँ, बिकॉज आई कंटिन्यूसली मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट इफ आई वॉन्ट टू ग्रो, दिस इज क्रिटिकल. देयर इज नो वे आई कैन ग्रो if I stop learning. Right. So be it learning by reading books, be it learning by listening to certain podcasts, be it learning by these professional certifications or degrees, I have made myself understand that इसके बगैर मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता. और जब ये रियलाइजेशन आपको हो जाती है कि इसके बगैर मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो फिर वो जो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो फिर हम कोशिश करते हैं. Very nice. You've been working in training fraternity for more than 2 decades almost, and think क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है about this training fraternity कि यार ये चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए थी, because you know you work with a lot of training organization as well, you met a lot of trainers, even I do met a lot of trainers, but understanding through your lens, यार ये चीज़ें मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है. Okay. समद यहाँ पे मैं दो चीज़ों की बात करना चाहूँगा. एक हमारे मेंटोर्स, एक हमारे मेंटीज. और मुझे लगता है कि दोनों ने अपने अपने लेवल पे जो है ना बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं ना, भंड मारे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फ्रेटर्निटी, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे पेन पॉइंट्स लगते हैं वो ये कि हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर मुझे वो यूनिटी नजर नहीं आती है, अनफॉर्चुनेटली, which is a sad part. Everyone is competing with each other. Exactly, we are competing with each other and we are not collaborating. Competition is a good thing. I'm not against it. But we should also talk about collaborations. वो मुझे बहुत कम नज़र आती है हमारी फ्रेटर्निटी में. आई थिंक ये मुझे एक पेन पॉइंट है जो मुझे लगता है. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनके ऊपर भी जो है ना एक भारी जिम्मेदारी किसी भी फ्रेटर्निटी के अंदर, जो आपके गुरुज होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, बिकॉज दे आर द टॉर्च बेयरर्स. उनको देख के आप और मैं सीखते हैं, उनको देख के जो उनका अमल होता है उसके लिहाज से हम काम करते हैं. सो इफ आई सी माई मेंटोर्स competing with each other and not collaborating, guess what? That is what I am going to do, unfortunately. ऐसे ही. तो ये मेरी एक शिकायत अपने जो हमारे इंडस्ट्री के फ्रेटर्निटी के जो सीनियर्स हैं उनसे एक रही है, कि एक तो ये है कि उन्होंने compete तो किया, collaborate नहीं किया. फोरम भी क्रिएट नहीं हुआ ऐसा. नहीं. दूसरा ये कि जो हमारे मेंटोर्स सिखाएंगे, हमारे मेंटीज वही सीखेंगे. So if the mentor is talking about continuous growth, continuous learning, only then the mentees are going to follow that path.
तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे जो हमारे मेंटोर्स रहे हैं, गालिबन उनका भी वो विजन नहीं रहा है। तो मैं एक बात करता हूं कि जी हमारी फ्रेटर्निटी में पाकिस्तान में देयर आर सम ऑफ द ग्रेट पीपल हु आर डूइंग ग्रेट वर्क, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अब्रॉड एज वेल। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए था कि दोज गुरुज, दोज मेंटोर्स, दोज बिग नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, दे शुड हैव taken the bar even higher. Actually, another thing I noticed about the industry guru and leaders and even the training fraternity and even the corporate world is that they're not very digital. They don't digitalize their self. They're very limited to that one training particular room. और मतलब अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रेनर या कंसल्टेंट को जब जाके हम सर्च करते हैं तो एक पूरी दुनिया, एक लाइब्रेरी खुल जाती है। मतलब उसका कंटेंट या उसकी जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, अगर किसी इंटरनेशनल ऑथर ने किताब भी लिखी तो उसने उसकी अवेयरनेस पे बहुत काम किया। A lot of podcasts, a lot of researches, a lot of articles have been there. Sadly, in Pakistan, I've seen nothing like that. What pattern you see कि ये क्यों नहीं हो पाया? Okay, I think you are absolutely right. And before I become the devil's advocate, I think I should start with myself. So, for example, I am also not doing a lot of work in that domain, and I think it is absolutely critical. बहुत ज़रूरी है. तो before I go and talk about someone else, I want to express कि मैं भी नहीं करता. अब मुख्तलिफ reasons होती हैं कि क्यों नहीं कर सकते. Maybe one of the reasons could be that people are satisfied with whatever they are getting. They do not want to digitalize. They do not want to reach masses. Probably that is one of the reasons. They want to ship their content. Exactly. Or maybe they do not want to share their content. Or maybe they are so busy that they do not get the time. Or maybe they are, they believe that they are so big that they do not need it. तो आई थिंक इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है. एंड आई टोटली एग्री विथ यू. जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री के बड़े हैं, दे शुड बी कंपीटिंग विद द मैकेंजीज, द INSEADs, द कॉर्न फेरी. वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब वो उस लेवल पे खेल रहे होंगे, और जब उस लेवल पे वो खेलेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री के जो बाकी लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो भी उसी पैथ को फॉलो करके, दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो. सो आई थिंक इट इज each and everyone's responsibility. So if there is anyone who looks up to me कि यार he is doing good work, then it is my responsibility that I continuously raise the bar for myself, so that the people who are following me, they should also raise the bar for themselves. And similarly, the gurus and the mentors that I look forward to, they should also continuously raise the bar. Our trainers have the capability to do some amazing work. बट हमारे यहाँ अगेन वही वाला कल्चर है ना. पाकिस्तान में समझ मैं आपको बताऊं कि एक बात जो मैं कर रहा हूं और वही बात अगर गोरा आके करेगा ना, गोरे की हम बात पे बोलेंगे वाह क्या बात कही है. साहिब बोलेगा तो बोलेगा ठीक है यार ये तो कॉमन सेंस है. Another important thing I realized that a lot of people on even LinkedIn are trying to go viral. They have to post every day. When LinkedIn algorithm works in a way कि आपने ना रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करना है. And a lot of corporate individuals, even from the training fraternity, I've seen कि लोग कुछ ना कुछ डालना चाह रहे हैं कि यार वो आगे निकल जाए. In fact, I've realized this thing कि viral is temporary and value is forever. Absolutely. Even the value is missing, मतलब हम. What do you think that why a lot of people are stuck in a rat race, बस करना है यार, मुझे भी ना बस आगे बढ़ना है, but they're not realizing that value comes first because you invested a lot in your development, so you understand the value of self-development, understand the substance. But लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते? I think ये वही जाहिर और बातिन की बात है कि क्वांटम फिजिक्स भी समझनी पड़ेगी, फिजिक्स भी समझनी पड़ेगी. तो जब तक आपके अंदर सब्सटेंस नहीं होगा, आप अगर वायरल हो भी गए, दैट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो आई थिंक हमें हमारी फ्रेटर्निटी को पहले तो ये करना चाहिए कि वी हैव टू डेवलप दैट कॉम्पिटेंस, और फिर जब हमारे अंदर वो कॉम्पिटेंस डेवलप हो गई है तो उसके बाद उसको शेयर भी करना चाहिए. वो कहते हैं ना कि जी सम पीपल टॉक बिकॉज दे वांट टू टॉक, सम पीपल टॉक बिकॉज दे वांट टू शेयर समथिंग. So there's a difference. तो LinkedIn पे अगर मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं कि यार कुछ ना कुछ डालना है, तो फिर my goal is different. Versus मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं that is going to add value to someone else. And if you are able to do it every single day, that is amazing, great.
do it, but don't just do it for the sake of doing it on a daily basis. तो मुझे इसीलिए लगता है कि competence हमें अपने अंदर continuously develop करना जरूरी है before we go on those social media platforms जहां पे हम अपना जो है ना trumpet बजाना शुरू कर दें. और इसीलिए मुझे लगता है कि continuous learning comes before we go on those social media and start sharing things. We have talked about training fraternity, but now would like to move towards HR fraternity. ट्रेनिंग फर्टर्निटी का एक बहुत क्लोज कनेक्शन होता है HR मैनेजर्स के साथ, HR हेड्स के साथ. एंड मैंने अक्सर नोट किया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा HR मैनेजर्स जो हैं वो भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को उस तरह से शायद नहीं समझते. दे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार वो ट्रेनिंग करानी है तो यार ये बजट होना चाहिए. What frustrates you most about the HR fraternity कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? ओके समद, बहुत आपने प्यारा क्वेश्चन पूछा और वो कहते हैं ना दुखती रख पे मेरी हाथ रख दिया है. तो इस पे 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा. एक पहली चीज से मैं स्टार्ट करता हूं जो थोड़ा सा मेरा एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि मैं खास तौर पे अगर HR से बात कर रहा हूं और HR में लोग अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं, दे शुड लर्न टू बी करेजियस. दे आर नॉट करेजियस इनफ. एंड व्हेन आई से करेजियस इनफ, दे शुड बी करेजियस इनफ टू से नो. दे आर अनएबल टू से नो. तो होता क्या है, एंड जो ट्रेनर्स हमारी ये बात सुन रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि HR would ask you for a proposal, you send them proposal, they collect 10 proposals from 10 different clients and then they go silent. Yeah. And then they won't respond to you and you will keep on following up with them कि यार क्या हुआ, proposal मांगा था. मैं चाहता हूं कि हमारे HR के जो लोग हैं, they should have the courage to say, yeah, we have received your proposal and we are not interested in getting it done from you. Have that courage. Tell them, we are not going to work with you because you are expensive. Have the courage to say that. Have the courage to tell them that, Mr. XYZ, we are not going to work with you because we are not happy with your content. We are not happy with your profile. Have that courage instead of going silent. So one of my major pain points is when they go silent. And this is unfortunate, very unfortunate in our society, because I've worked with clients abroad as well. I've studied outside. I have friends out there. They do not do this. अगर उनको आपकी चीज नहीं पसंद आएगी, वो रिलेशनशिप खराब नहीं होगा, वो कहेंगे समद, I do not want to work with you. Either they will give you a reason or they will not give you a reason. But in any case, they will be very candid with you. They will not go silent. तो ये मेरा एक बड़ा पेन पॉइंट है. दूसरा मेरा पेन पॉइंट जो हमारे HR से जो लोग हैं या जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट से हैं, अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ देम हैव नॉट स्टडीड HR और लर्निंग एंड डेवलपमेंट. तो वो इत्तफाकन HR में आ गए हैं या गालिबन उनकी पीपल स्किल्स अच्छी थी तो उनको कंपनी ने या सेट ने या बॉस ने कह दिया कि यार तुम HR संभाल लो. और हमारे यहाँ वो एक फिलॉसफी बनी हुई है कि यार एक बंदा अगर बातचीत करने में अच्छा है, खुश मिजाज है, तो इसका मतलब है वो HR कर सकता है. People who do not understand HR, people who have not studied HR, what kind of value do you think they are going to add? जब इस तरह के लोग आपके इदारों के अंदर होंगे, उसका नतीजा यही निकलेगा कि एक बंदा आपको ईमेल करेगा, बोलेगा कि जी हमें 2 दिन की ट्रेनिंग करानी है टाइम मैनेजमेंट पे, आपने 3 साल पहले जो रन कराई थी वो पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छा लगा था, यही दोबारा हमारे लिए करा. I faced this challenge multiple times. For example, a client asked for a communication training proposal or communication masterclass proposal. And sometimes it's very difficult me to realize the other person कि communication कोई एक दिन का process नहीं है या 2 घंटे का process नहीं है. आपकी ROIs क्या है या आप क्यों कराना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ऑन दी अदर साइड हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल HR लेवल पर भी आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स को ना बहुत एनहांस करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट यू एनकाउंटर विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो डोंट यू थिंक देयर इज़ अ बिग गैप, हमारा एक बहुत बड़ा गैप है. और ट्रेनर के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग का जो सब्सटेंस लेवल है वो बहुत हाई होता है. और इस लेवल पर अगर सब्सटेंस लेवल उस लेवल का नहीं है तो वो बात डिलीवर करना एक बड़ा कंफ्यूजिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल समबडी क्लाइंट आस्क कर फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग एंड यू नो दैट
कि लीडरशिप ट्रेनिंग ये 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। ये मैंने किताब लिखी है क्वांटम वर्ल्ड पे और ये तो मुझे कोई सालों लग गए लिखने में। ये मैं कैसे 3 घंटे में डल रही है, आपको 3 घंटे में करना है? हाउ डू यू सी दिस? एग्जैक्टली देखें, और उसकी समझ रीजन क्या है? उसकी रीजन ही ये है व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द साइंस। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अक्सर औकात जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग, आज की दुनिया ऐसी है कि चैट जीपीटी हर एक का डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ है। तो डॉक्टर के पास, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर है, मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रही है, आप कहते हैं यार ये दवाई ले लो। मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ये दवाई नहीं, मुझे ये दवाई दें। हाउ वुड यू फील? द सेम थिंग वी डू विद ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स। देखें, इफ यू थिंक दैट द पर्सन इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, you listen to them. If you think he or she is not a subject matter expert, then the story ends there. But if you think that he or she is a subject matter expert, then you should listen to them. And this is my major pain point as far as HR goes. और इसीलिए मैं कहता हूं कि unfortunately हमारे यहाँ पाकिस्तान में people who are in HR, they do not know about HR. People in learning and development, they have not studied learning and development. They do not understand how competence is developed. और जिसको ये बात पता नहीं होगी वो यही बात आपसे करेगा कि यार 2 दिन में ये चीज सिखा दो। और उनका टारगेट यही होगा कि यार ये मेरे पास ये जो चेकलिस्ट है जिसमें मुझे ऑर्डर किया गया कि इस साल 15 ट्रेनिंग्स करानी है, मैंने 15 ट्रेनिंग्स करा दी और वो ROI यही चीज दिखाएगा। एक और मेरा बड़ा मेजर पेन पॉइंट, और ये मेरा ट्रेनर से भी है और ऑर्गेनाइजेशन से भी है, व्हेन दे से कि सॉफ्ट स्किल्स का तो ROI निकल नहीं सकता है। तो बहुत विद ऑल दी ह्यूमिलिटी, जो HR के लोग कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का ROI नहीं निकल सकता है, विद ऑल दी ह्यूमिलिटी जो ट्रेनर्स कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स का ROI नहीं निकल सकता है, तो वो कर्क पैट्रिक की किताब पढ़ लें। और उस किताब के अंदर द 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन किताब है, उसको पढ़ लें। उस किताब के एंड में कर्क पैट्रिक ने इंडस्ट्रीज का तस्करा किया है जहां पे उन्होंने उन चीज़ों को ROI निकाल के दिया है। सो सॉफ्ट स्किल्स का ROI निकल सकता है प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू डू इट। वो जो कहते हैं ना कि अगर आप एक काम नहीं कर सकते हैं तो आप उन लोगों को तंग ना करें जो वो काम कर रहे हैं। सो आई थिंक हमारी HR के अंदर वो अवेयरनेस आना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि HR के अंदर वो लोग आने। क्या आप अपनी कंपनी के CFO किसी ऐसे बंदे को बनाएंगे जिसने फाइनेंस पढ़ी ना हो? नहीं बनाएंगे ना। जब आप अपने CFO को नहीं हायर करते जिसने फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ है, हाउ डू यू हायर अ पर्सन इन HR हु हैज नॉट स्टडीड HR? हाउ कैन यू हायर अ पर्सन इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट हु हैज नॉट स्टडीड लर्निंग एंड डेवलपमेंट? बिकॉज अगर आप वो काम करेंगे उसका नतीजा यही निकलेगा। अगर आप जिस बंदे ने HR पढ़ा हुआ है, जिसने फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ है, उसको अगर आप CFO बना देंगे तो उसके डिसीजंस आपको पता है क्या होंगे। ऐसे ही, so these are the problems that we face day in day out. Another problem which I've seen in the industry these days, और ये काफ़ी राइज अप हुई कि a lot of organization realize कि अगर हम किसी एक्सटर्नल ट्रेनर को बुलाते हैं ना, so that cost us huge, you know, that cost us big. वो अपनी एक प्रपोजल पुट अप करता है and that cost us more. अगर हम एक इन हाउस ट्रेनर हायर कर लें, अगर आप एक इंडिविजुअल को हायर कर लें कि यार तुम पूरे साल का ट्रेनिंग रोड मैप बनाओ, पूरे साल की लर्निंग एंड डेवलपमेंट को तुम आगे लेके चलो, तुम्हें हम ट्रेन द ट्रेनर करवा देते हैं और तुम बस अब तुम संभालो, हमें किसी एक्सटर्नल ट्रेनर की जरूरत नहीं, हमारे बजट सेव हो जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस प्रैक्टिस? एंड दिस प्रैक्टिस इज राइजिंग अप। यू नो, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट हैविंग एक्सटर्नल ट्रेनर्स, दे वर लाइक हमारा इन हाउस काफ़ी है। ओके, सो इस पे एक दो चीजें समझ। एक तो ये है कि देयर आर केसेस वेयर दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, आई वुड से। बहुत अच्छी बात है, आपकी इंटरनल कैपेसिटी आप डेवलप करें, और ये उस तरह के इदारों के लिए दिस इज अ गुड मॉडल जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर्स हैं और आपको कोई एक ही चीज रिपीट करनी है बार बार। तो इट मेक सेंस कि उसमें अगर आप एक्सटर्नल ट्रेनर को लाओगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। बट इज दिस द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग? नो, नॉट एट ऑल, फॉर मल्टीपल रीजंस। नंबर वन, कि आपका जो इंटरनल ट्रेनर है उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसका अपना एक सर्टेन एक्सपोजर है, एक पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव है। If that is the only perspective that you need, good enough, go for it. I'm not against it. But not everything can be done internally, because
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ये देखना चाहते हो कि दुनिया में 10 जगहों पे क्या हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग विथ 20 organizations, I know the challenges which are being faced by 20 organizations, which may or may not differ with each other. Versus एक मैं ट्रेनर हूं जो एक ही इदारे के साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ उस इदारे के चैलेंजेस पता होंगे, उस इदारे के सॉल्यूशंस पता होंगे. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कहां पे मुझे इंटरनल रिसोर्स को यूज करना है और कहां एक्सटर्नल पे जाना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई वाज लिसनिंग अ पॉडकास्ट ऑफ सीईओ डायरी जहां मैंने बड़ा मजेदार कन्वर्सेशन सुनी कि आफ्टर एआई, इनफैक्ट आफ्टर चैट जीपीटी, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आर टेकिंग स्मॉल बेसिक वर्क्स फ्रॉम चैट जीपीटी और उन्होंने खुद से सोचना छोड़ दिया. हाउ डू यू सी दिस? ओके, सो मेरा इस पे जो रिस्पॉन्स है वो शायद नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आई कैन शेयर माई परस्पेक्टिव. समझ, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके कुछ प्रोज होते हैं, उसके कुछ कॉन्स होते हैं. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जब हमारे पास सेलफोन नहीं था, सेलफोन हमारे पास नहीं आए थे, और आपने भी गालिबन वो दुनिया देखी है जब सेलफोन्स नहीं थे, हमें फ़ोन नंबर्स याद होते थे. उसके बाद सेलफोन आ गए और आज हमें अपने नंबर के अलावा गालिबन अपनी बेगम का भी नंबर याद नहीं होता है. सो व्हेनेवर टेक्नोलॉजी कम्स, थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट. सो आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी. I am not someone who will tell you not to use ChatGPT. Do use ChatGPT. But there is a fine line that you need to, that you should not cross. If you are entirely dependent on ChatGPT, you are gone. मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. ChatGPT से पहले 5 साल पहले, आप कह लें 6 साल पहले, 7 साल पहले, अगर किसी को अच्छी ईमेल लिखनी है अंग्रेजी में, तो उसकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. अगर ग्रामर अच्छी नहीं होगी, वोकैबुलरी नहीं होगी, तो अच्छी ईमेल वो नहीं लिख सकता है. तो मेरे पास अगर कोई एक ईमेल आती है 6 साल पहले, मुझे पता चलता है उस ईमेल को देख के कि बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, उसकी ग्रामर कितनी अच्छी है, उसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है. चैट जीपीटी के आने के बाद every other person is a champion writer. Very true. But guess what? The problem is that if you entirely rely on ChatGPT, the problem is going to be कि जिस दिन ChatGPT नहीं होगा, जिस दिन ChatGPT down होगा, उस दिन आप क्या करोगे? So similarly, thinking के हवाले से भी you are absolutely right. Taking help from ChatGPT is not bad. It's a really good thing. But मेरी suggestion ये होगी, the thinking should start with you. So let me give you my own example. How do I do it? So when I'm sending an email to a client, I write the email myself first, and then I ask ChatGPT to refine it. And whatever ChatGPT gives me back, again I review it. And I do not entirely rely on ChatGPT. So for example, मैंने एक ईमेल लिखी अपने लिहाज से, उसको ChatGPT को दिया, उसने इम्प्रूव करके जो मुझे दे दी, मैंने उसको दोबारा देखा, पढ़ा और उसके अंदर मजीद नोक पलक की. तो हो सकता है कि जो रिफाइंड ChatGPT ने मुझे दिया है, उसमें से अगेन मैं 70% यूज करूं, 30% मैं यूज ना करूं. सेम गोज फॉर प्रपोजल्स फॉर एग्जाम्पल. तो अगर कोई ट्रेनर ChatGPT को कहता है कि यार मेरे लिए एक प्रपोजल बना दो, then that trainer, he or she, is going to be in trouble. Why he or she is going to be in trouble? Because उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उसके जहन में फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है. जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम एक उसके पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि यार ये इसकी बाउंड्री है, मैं इन एरियाज पे जाऊंगा, ये इसका फ्लो होगा. अगर वो फ्लो आपने नहीं सोचा, तो आप उसको 100% अपना दे नहीं सकेंगे. सेम मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपने बनाना है, कंटेंट भी बनाना है, पहले आप कंटेंट खुद बनाएं. आई डू दिस. जिस तरह मैं पहले कंटेंट बनाता था, उसी तरीके से मैं कंटेंट बनाता हूं, अपनी रिसर्च करता हूं. उस कंटेंट को मैं फिर मैं चैट जीपीटी को देके कहता हूं कि यार अब आप मुझे बताओ इसके अंदर और क्या ऐड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम
रनिंग अ सेशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक एल्बर्ट मैरबियन का एक UCLA का एक उन्होंने रिसर्च की थी कोई 70s 80s में, जो आज तक चलती आ रही है, जो 70 20 10 वाला है. एग्जैक्टली 7:30-55. हाँ 7:33:55 एग्जैक्टली. तो ये हम भी यूज करते हैं. सो व्हाट आई डू कि मैं चैट जीपीटी को ऐसे यूज करता हूं कि मैं चैट जीपीटी को कहता हूं कि यार ये एल्बर्ट मैरबियन ने रिसर्च की थी 70s में 80s में, क्या इसके बाद कोई और रिसर्च हुई है? अगर हुई है वो मुझे बता दो. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, अगर कोई मेरे पास नई रिसर्च मुझे मिलती है वो मैं उसको ऐड कर देता हूं. सो चैट जीपीटी इज लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट, योर पर्सनल कोलीग with whom you can pitch ideas, discuss, debate, and then you decide कि आपको कौन सी चीज यूज करनी चाहिए और कौन सी चीज यूज नहीं करनी चाहिए. ओवर रिलायंस अगर उसके ऊपर रखेंगे तो फिर एक ना एक दिन you are going to be in trouble. We live in a world जहाँ पे हमारे corporate professionals पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ना बहुत ज़्यादा हार्ड स्किल फोकस्ड है, और हमारे हार्ड स्किल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी भी गई है, बिकॉज इन अवर एकेडमिक्स इन अवर यूनिवर्सिटीज़ हमारे सॉफ्ट स्किल्स को पढ़ाई नहीं किया. जस्ट लाइक यू ऑलरेडी मेंशन इन माय MBA देयर वाज ओनली वन कोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. एक ऐसे इंडिविजुअल जिसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि यार मुझे अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, बट वी लिव इन अ ऑर्गेनाइजेशन, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सीटियाँ कंपनीज भी होती हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स नहीं हो रही होती. एक इंडिविजुअल अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर किस तरह काम करे और किस स्किल को प्रायोरिटाइज करे पहले? ओके समझ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, अगर कोई किसी का मुंतज़र है कि कोई आके मुझे सिखाएगा, समझाएगा, पढ़ाएगा, मेरे लिए ट्रेनिंग रन करवाएगा, मेरे इदारे के अंदर तो ट्रेनिंग होती नहीं है, मैं कैसे सीखूं? he or she is living in a fool's paradise. he or she is not serious about their learning. आज की दुनिया में लर्निंग से आपको कोई भी चीज़ नहीं रोकती है. तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा इदारा ट्रेनिंग नहीं कराता, वो जान छुड़ाना है अपना. दे आर नॉट सीरियस अबाउट लर्निंग. मेरी एक फिलॉसफी है कि एनी इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग व्हेन दे रियलाइज दैट दे नीड टू लर्न. तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट स्किल्स की आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है. जब तक, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको. मुझे खांसी हो रही है, आप कह रहे हैं यार साहब आपको खांसी हो रही है, डॉक्टर के पास चले जाओ. मैं कह रहा हूं नहीं नहीं यार ठीक है. इलाज का पहला कदम ये मानना है कि मैं बीमार हूं. ऐसे ही. सो जब तक मैं मानूंगा ही नहीं दैट आई नीड टू लर्न, हाउ वुड आई लर्न? हमारा अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का, अनफॉर्चुनेटली, that we believe that we already know everything. Yeah. तो हमारा अलमिया ये है समझ के हम ये समझते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो कॉम्पिटेंट हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है. यही अलमिया हमें डुबा देता है. मैं तो मैनेजर हूं, मैं मैनेजर बनाऊं इसीलिए क्योंकि मुझे आता है. मैं तो CEO हूं, CEO का तो मतलब है कि मुझे आता है तभी तो मुझे CEO बनाया है ना. मैं तो ट्रेनर हूं, मुझे आता है तभी तो मैं ट्रेनर हूं ना. मैं टीचर हूं, मुझे आता है तभी तो मैं ट्रेनर हूं ना. दिस इज समथिंग दैट स्टॉप्स आवर ग्रोथ. अगर हमें तरक्की करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें यह समझना होगा कि हमें और ज्यादा सीखने की जरूरत है. वो कहते हैं ना, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ लेस आई नो. वेरी नाइस. तो जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हमें सीखने की जरूरत है, तब तक हम सीखेंगे ही नहीं. और तब तक हमारा यही ख्याल होगा कि यार सॉफ्ट स्किल्स की क्या जरूरत है. वेरी ट्रू. सॉफ्ट स्किल्स तो उनको जरूरत है वो जो कस्टमर सर्विस में है, उनको जरूरत है. मैं तो CFO हूं, मैं तो, मेरा काम तो फाइनेंस है, मैं तो IT में हूं, मेरे लिए सॉफ्ट स्किल्स की क्या जरूरत है? मुझे तो काम आता है ना. दैट्स इट, दैट इज माई वर्क. जब तक हम इस सोच में फंसे रहेंगे, we will never be able to grow. My simple answer to people is that we work with people, we do not work with machines. And whenever we are working with people, soft skills are critical. Emotional intelligence is critical. And that is the only way we can grow, when we invest in that. In my experience of
मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एक डेकेड का है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली नॉट अ 2 decade एक्सपीरियंस लाइक यू ऑलरेडी हैव इट. आई हैव सीन दैट कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स. लिंक्डइन सर्वे के मुताबिक a lot of organizations have been to realize that communication is a very vital skill, but its की importance शायद इस तरह से वाज़े हो नहीं सकी. इनफैक्ट आई रेड वन थिंग जहाँ पे मैंने बात पढ़ी कि द बिगेस्ट लाई बीन टोल्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली. हर स्किल बराबर है, हर चीज़ की वैल्यू सेम है. इफ somebody wants to improve their communication skill, you work with industry gurus, you read a lot of books, you work internationally as well. What would you advise to individuals? How can they improve their communication? What are the best practices you would suggest कि यार ये चीज़ें बहुत important है if you really want to enhance your communication in professional world? Okay. So सबसे पहले तो ये अगेन कम्युनिकेशन की बात हो या किसी भी स्किल की बात हो, उसकी इब्तिदा होती है ये समझने से कि आई नीड टू लर्न, आई नीड टू ग्रो. ये वो चीज़ है जो इंटरनली आपको करनी है. अब जो आप बात कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करते हैं, इट एनकम्पासेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपका राइटिंग स्किल्स भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, आपका रीडिंग स्किल्स भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का पार्ट है. तो पहले तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि कौन सा एरिया है जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है. जनरली हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो लोग समझते हैं कि यार यहाँ पे सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है. तो कोई बंदा बोलेगा कि यार मैं ग्रामर सीख लेता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी. कोई बोलेगा कि यार मैं वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी. कोई शख्स कहेगा कि मैं अपनी प्रोनंसिएशन बेहतर कर देता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू रियलाइज कि व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, उसका कौन सा एलिमेंट है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है. और उस कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ वर्बल नहीं है, वोकल भी है, विजुअल भी है, राइट. सो तो मेरी सजेशन ये होगी किसी को भी कि जब वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो पहले रियलाइज करें कि मुझे कौन सी चीज़ के अंदर काम करने की ज़रूरत है. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वुड से दैट प्रॉबेबली आई नीड टू वर्क ऑन माई वोकैबुलरी मोर. Probably I am good with my pronunciation, but probably I need to work on the vocabulary part. तो मुझे उस एरिया में काम करने की ज़रूरत है. और probably someone would say कि यार मैं grammatical mistakes करता हूँ तो मुझे उस एरिया में काम करने की ज़रूरत है. कोई एक और बंदा कह सकता है कि यार मैं क्लैरिटी के साथ अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकता. दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी हैव सीन इन द इंडस्ट्री. पीपल हु आर जीनियस, पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, but they cannot express themselves in the right way. आप किसी साइंटिस्ट से मिलें, आप किसी डॉक्टर से मिलें, उनका कॉम्पिटेंस लेवल टॉप ऑफ द रूफ है, ऐसे ही, but they are unable to express themselves. ऐसे ही. तो ये हमें देखना होगा. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल. जब हम साइंस की बात करते हैं, एक स्पीकर है जिनका नाम है नील डिग्रास टाइसन. ही इज अ फिजिसिस्ट, ही टॉक्स अबाउट फिजिक्स. और भी बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं दुनिया में, लेकिन नील डिग्रास टाइसन इज फेमस. आप अगर इत्तेफाक आप में से जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अगर उनको देखें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी वीडियोस को देखें. और फिर और भी बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं, उनको भी देखें. व्हाई इज नील डिग्रास टाइसन फेमस और डिफरेंट? नॉट बिकॉज कि उनका कॉम्पिटेंस लेवल हाई है, बट ही नोज हाउ टू से that is being understood by the other person. So communication का मेरे नज़दीक लुब्बे लुबाब ये है कि जो आप कहना चाहते हैं वो इस अंदाज में कहें कि सामने वाले को समझ आ जाए. Very nice. और जितना आसानी से वो समझ आ जाएगा उतना उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा. क्यों लोग फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर नील डिग्रास टाइसन को सुनते हैं? क्यों फॉर एग्जाम्पल मिचियो काकू को सुनते हैं? क्यों लोग फॉर एग्जाम्पल साइमन सैनिक को सुनते हैं? क्योंकि वो बात इस अंदाज में करते हैं जो दूसरे को समझ आ जाए,
कनेक्ट कर जाए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन का रूल ही ये होना चाहिए कि आप जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ CEO, the CEO should able to get you. When you are talking to a layman, a vendor, a worker, he or she should also be able to get you what you are trying to tell them. Amazing. That is, in my opinion, the pinnacle of communication. Amazing. You wrote a book on quantum physics and leading in the quantum world, जहाँ पर आज के मास्टर में जहाँ पर लोग पॉडकास्ट डिजिटल कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आई थिंक रीडिंग इज डाइंग इन आवर सोसाइटी सैडली। आई हैव सीन दैट एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है। हाउ डू यू सी दिस? व्हाई रीडिंग इज डिक्लाइन एंड क्या रीडिंग को पॉडकास्ट और चीज़ों से रिप्लेस किया जा सकता है? ओके, मेरी पर्सनल राय ये है कि आज जिस जनरेशन के साथ हम रह रहे हैं ना, दे आर नॉट इनटू बुक्स। तो उसके लिए हमें बुक्स के अलावा एरियाज को भी एक्सप्लोर करना होगा, डिजिटल की तरफ हमें आना होगा। एंड लेट्स मेक दीज डिजिटल टूल्स एज आवर हुक्स which connect them back to the books. तो मेरी किताब लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर उसके लिए एक वीडियो बना दूं जो हुक क्रिएट कर दे, जो लोगों को मेरी किताब की तरफ लेके जाए, that is the way we can do it, I believe. थैंक यू सो मच साहिब, इट्स अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन। हमारा अगला जो पार्ट है कन्वर्सेशन का पॉडकास्ट का, विल डेफिनेटली हैव अ टॉक एंड दैट विल बी सोली बेस्ड ऑन योर बुक। सो लेट मी रिसर्च ऑन इट बिकॉज थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। आई विल ट्राई टू गिव इट अ रीड इन द अपकमिंग डेज। मैं खुद एक ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उस पर पढ़ने की कोशिश करूँगा और आई विल कीप इट विद मी एंड व्हेन आई विल कम बैक सो आई विल कम विद सम वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस एंड आई विल be a critical analysis as well कि हम इस पर कुछ बात कर सकें। Thank you so much जी, बहुत Thank you very much. Pleasure being here with you.